Hello everyone, welcome to my class. In this class, particularly we will be studying about vaccines, okay, types of vaccines and what is their mode of action and what are the challenges and production of various types of vaccines. Before proceeding further, I would like to tell you about myself. There is a brief introduction of me. So I did MSc and PhD from IIT Bombay. Okay, and in PhD, I did actually from IIT Bombay and Monash University, which is a collaboration between these two universities. And uh, before MSc, I actually appeared in several entrance exams, which includes IIT JAM, TIFR, IISc, JNU CEB, ICAR. So all of these exams I have appeared and I have cleared all of these exams with very good ranks. Okay, so I got admission into IIT Bombay because I got All India rank of 4, and although I have cleared all of these exams, but I chose IIT Bombay. And why I chose and why IIT Bombay is was better for me as compared to all other institutes, I will take another session for you. But for as of now, you just we will stick to our topic, which is vaccines. Okay. And after MSc, I appeared for PhD entrance exams, which are GATE, Life Sciences, and CSIR NET, JRF. In both the exams, I got very good ranks. Okay, so after that I got job in a university, as well as I have experience in industry also, in research and development division. And then I chose to teach on the online platform like an academy. So for all of those who are aspiring to do MSc and PhD from very good institutes, and to help them and to give right directions. So I'm here for you. Okay. So let's start our topic, which is vaccines. So स्टार्ट करने से पहले कि वैक्सीन्स होते क्या हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन कौन से मैकेनिज़म्स होते हैं इम्यूनिटी एक्वायर करने के. ठीक है, तो दो तरीके के हैं मेथड्स, which are naturally acquired and artificially acquired. Okay, so in both the cases there is passive and active. Okay, so in case of naturally acquired, what happens? The immunity is acquired from antibodies present in the mother. Okay, so the child will get the antibodies from the milk or through the placenta. Okay, so this kind of immunity is called as passive. There is also active form of naturally acquired immunity. And what is that? It is actually जब भी a person, कोई भी person है, वो एक्सपोजर में आता है किसी भी पैथोजन के, किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के, तो the person gets the disease, the person get ill, okay, and then he or she will start recovering. Okay, so this is a natural way of immunity, and it is active. Active means what? Active means the individual, the patient, is himself or herself uh, producing the antibodies, okay, without any external help. Okay, so that is called as active immunity. There is artificially acquired immunity, in which the person itself is not producing antibodies. Okay, so either it is passive or active. Okay, so in case of passive, how it is? The immunity is gained through antibodies which are harvested from another person or animal. So that is passive. The passive meaning the person is not producing antibodies by himself or herself. Active का मतलब है कि वो person बना रहा है खुद की antibodies. ठीक है, तो उस केस में immunity is actually acquired through vaccine. Vaccine मतलब it is artificially given. The pathogen or a part of pathogen is given artificially to the person, and the person himself or herself is producing
antibodies. Okay, so that is called as active artificial immunity. ठीक है, अब वैक्सीन्स होते क्या है? वैक्सीन्स आर nothing but weakened or inactivated pathogens or preparations consisting of key pathogen antigens. ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई भी कॉम्पोजिशन है या फिर कोई भी पैथोजन है जिसको इनएक्टिवेट कर दिया गया है या एटेन्यूएट कर दिया गया, अब क्या डिफरेंस होता है इनएक्टिवेशन और एटेन्यूएशन में, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस क्लास में। तो इसका एक्सपोजर, डिलिबरेट एक्सपोजर ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, तो किसी इंडिविजुअल को हम डिलिबरेटली expose कर रहे हैं with the pathogen, whether it is inactivated or it is a part, it is key antigen or whether it is attenuated pathogen. ठीक है, तो ये सब आते हैं वैक्सीन में, और वैक्सीन is a method of artificially acquired active immunity. Okay, now coming to the classes of vaccines. ठीक है, कितने तरीके की होती हैं? तो सबसे पहले आता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो ध्यान रहे आपको ये लाइव है, तो इस केस में इस तरीके की जो वैक्सीन्स होती हैं इनमें वीकेंड स्ट्रेन ऑफ अ पैथोजन इज यूज्ड। ठीक है, तो ये द पैथोजन इज नॉट किल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, द पैथोजन इज वीकेंड, मतलब उसको पैथोजन को वीक बना दिया गया है बट उसको पूरी तरह से किल नहीं किया गया है। ठीक है, एंड दिस पैथोजन विल एक्टिवेट द अडेप्टिव इम्यून डिफेंस। ठीक है, और पैथोजन को किस तरीके से एटेन्यूएट किया जा सकता है? आप पूछोगे कि कैसे हम कर सकते हैं एटेन्यूएट, कैसे हम इसको विदाउट किलिंग हम इसको लेस विरुलेंट बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं? थ्रू जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन का क्या मतलब है? जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती फॉर द विरुलेंस, तो विर जीन्स होते हैं, आप सभी को पता होगा, दीज आर विरुलेंस जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विरुलेंस ऑफ अ पैथोजन। ठीक है, कोई पैथोजन कितना अच्छी तरीके से डिजीज कॉज कर सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है? इन जीन्स पे डिपेंड करता है, इन जीन्स से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। अगर हम इन जीन्स को मॉडिफाई कर दें, मैनिपुलेट कर दें सच दैट कि वो पैथोजन कम एफिशिएंट हो जाए, लेस विरुलेंट हो जाए, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं उस पैथोजन को एटेन्यूएटेड। ओके, देयर इज अनदर मेथड आल्सो विच इज लॉन्ग टर्म कल्चरिंग, मल्टीपल कल्चरिंग, जिसको पसाजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, पसाजिंग का क्या मतलब होता है कि हम कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई सेल्स को कल्चर कर रहे हैं, उसमें हमने बैक्टीरिया डाल दिया है, या तो हम बैक्टीरियल सेल्स को कल्चर करें डायरेक्टली जो पैथोजन है, या फिर अगर हम मैमिलियन सेल्स को कल्चर करें और उसमें हमने वायरस इनोकुलेट कर दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर सब कल्चरिंग दिस कल्चर। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, सो देयर आर सेवरल टाइम्स वी आर डूइंग सब कल्चरिंग। ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, एन माइट बी इक्वल टू 10 to 20। ठीक है, एनीथिंग, सो इट डिपेंड्स अपॉन द पैथोजन, कौन सा पैथोजन है जो हम स्टडी कर रहे हैं, हम उसके लिए हम वैक्सीन बना रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मल्टीपल पैथोजन से क्या होता है? द एफिशिएंसी ऑफ अ पैथोजन विल डिक्रीज। ठीक है, द कैपेबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज द डिजीज विल डिक्रीज, विरुलेंस विल डिक्रीज। Okay, so these are the two methods by which we can prepare live attenuated vaccines. So this is the method of production. Okay, तो एग्जैक्ट मैं उसमें जो एक्चुअल इंडस्ट्रियल प्रोसेस है मैं उसमें नहीं जाने वाली, मैं बस आपके कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ कि किस तरीके से हम पैथोजेंस को एटेन्यूएट कर सकते हैं। इस तरीके की जो वैक्सीन्स होती हैं वो कॉज करती है एक्टिवेशन ऑफ बोथ सेलुलर एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेलुलर, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी बोलते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं टी सेल्स। ओके, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं बी सेल्स एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं ह्यूमोरल में, और सेलुलर में प्रोड्यूस होते हैं टी सेल्स। ठीक है, तो दोनों ही ये जनरेट होते हैं इन केस ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स।
ठीक है। एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी टू द इंडिविजुअल। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। हाउ दीज वैक्सीन्स वर्क, दे व्हाट इज देयर मोड ऑफ एक्शन, दे एक्टिवेट बोथ सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटीज। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये जो वैक्सीन्स हैं, बिकॉज दे आर एटेन्यूएटेड, तो इसलिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, और ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देर आर चांसेस कि जो पैथोजन है, दैट पैथोजन माइट बी किल्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन और ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म storage. Then another challenge and another disadvantage is the person who has been administered with this vaccine may develop signs and symptoms of this particular disease during the active infection. So basically what will happen, जब भी हम किसी पर्सन को ये वैक्सीन देते हैं, तो देयर आर चांसेस कि उस पर्सन में एक्चुअल डिजीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाए, अपीयर हो जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इन वैक्सीन्स का। और ऑल्सो देयर आर चांसेस कि जो पैथोजन जिसको हमने एटेन्यूएट किया है, due to some changes, some mutation maybe, or maybe some environmental factors, the pathogen may revert back to the full virulence। मतलब वो एक्चुअल जो एक्टिव फॉर्म होती है उसकी, जो उसकी पैथोजेनिक फॉर्म है, विरुलेंट फॉर्म है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल डिजीज विल डेवलप इन द पर्सन एंड द life of that person will be in danger because of the disease। Okay, so depends on the severity of the disease and which disease we are studying, you know। So these are the disadvantages of these particular type of vaccines। अब ये वैक्सीन्स को हम किन डिजीजेस को क्योर करने में यूज़ करते हैं, कौन कौन से वैक्सीन्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, फॉर विच डिजीजेस आई हैव लिस्टेड डाउन द नेम्स ऑफ द डिजीजेस। चिकन पॉक्स इज देयर, चिकन पॉक्स के लिए इस तरीके की वैक्सीन्स यूज़ करते हैं। मीजल्स, जर्मन मीजल्स और मीजल्स दोनों तरीके के मीजल्स में यूज़ होता है। मम्स में यूज़ होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस में, एंड टाइफॉइड फीवर, येलो फीवर। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिनके लिए इस तरीके की वैक्सीन्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो MMR वैक्सीन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ this kind of vaccine, so which stands for measles, mumps and rubella। Now coming to the next example, next class of vaccine, which is inactivated vaccine। तो as the name suggests, जैसे कि नेम से क्लियर है, हमें यहाँ पे पैथोजन को इनएक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, अब इनएक्टिवेट हम किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर क्या मेथड्स होते हैं, which that I will also tell you। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कंटेन होल पैथोजन। ध्यान रहे आपको कि ये पूरा का पूरा पैथोजन इसमें यूज होता है, सिमिलर टू द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। ठीक है, उसमें भी होल पैथोजन यूज होता है, और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में भी होल पैथोजन यूज होता है। बट in case of inactivated vaccines, the pathogen has been killed or inactivated with heat, केमिकल्स और रेडिएशन। तो हम हीट से भी कर सकते हैं किल, एट हायर टेम्परेचर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी किल्ड यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। हार्श केमिकल्स यूज करके भी हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, या फिर रेडिएशन जो हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस होते हैं, या फिर हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल यूवी रेडिएशंस। ठीक है, उनको भी हम यूज करके पैथोजन को एक्चुअली में किल कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें बहुत केयरफुली इनएक्टिवेट करना है, केयरफुली किल करना है पैथोजन को, सच दैट इट मस्ट नॉट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द की एंटीजेंस ऑन द पैथोजन। मतलब जो पैथोजन पे की एंटीजेंस है, जिनकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट हो रहा है, एलिसिट हो रहा है मतलब जनरेट हो रहा है, कि जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने का जो कॉज है, द की एंटीजन शुड नॉट
मस्ट नॉट बी अफेक्टेड, ठीक है, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी चाहिए, मेमोरी सेल्स चाहिए उसके लिए हमें, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, ना उसका स्ट्रक्चर और ना ही उसका कंपोजिशन, ओके। There is disadvantage of this vaccine is it, what is that? The immune response which is generated because of these vaccines is weaker, ठीक है, weak होता है because it is killed, ठीक है, less effective है, less comprehensive है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कितना वाइड रेंज ऑफ एंटीबॉडीज बन रहा है, कितना अलग अलग तरीके के सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं एंड दे आर making a pool for the memory of immunity against that particular disease. Okay. So immune response is weaker and less comprehensive. It elicits only humoral immunity. Why humoral? Because it is inactivated, it is killed. तो जब ये killed है, पैथोजन अगर killed है तो सेल के अंदर नहीं जाएगा, अगर सेल के अंदर नहीं जाएगा then it will not be degraded and presented on the MHC molecules, और फिर MHC molecules पे जब present होता है तब ही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इस केस में स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज द पैथोजन इज किल्ड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ ह्यूमोरल इम्यूनिटी ही जनरेट होती है। इस केस में पैथोजन कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में जो पर्सन है दैट इज इन्फेक्टेड, दैट इज एडमिनिस्टर्ड विद द किल्ड पैथोजन, तो इसलिए जो पैथोजन है वो एक्टिवली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकता। सो दिस इज काइंड ऑफ एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर वैक्सीन। यूजुअली इन तरीके की जो वैक्सीन्स होती हैं इनमें हायर डोज रिक्वायर्ड होता है एंड मल्टीपल बूस्टर्स, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बिकॉज जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया इम्यून रिस्पॉन्स इसमें वीकर होता है, तो इस वजह से ये जो वैक्सीन्स हैं इनमें जो पैथोजन है वो हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट्स में दिए जाते हैं टू द इंडिविजुअल, ठीक है। तो इस वजह से इट रिक्वायर्स हाई डोजेस टू एलिसिट मोर अमाउंट ऑफ मोर रिगरस इम्यून रिस्पॉन्स एंड इट ऑल्सो रिक्वायर मल्टीपल बूस्टर डोज। मल्टीपल बूस्टर डोज का क्या मतलब होता है? एक बार डोज दे दिया वैक्सीन का, एक बार इंजेक्शन लग गया, उसके बाद आफ्टर मे बी फ्यू वीक्स, मे बी फ्यू मंथ्स और मे बी फ्यू ईयर्स द पर्सन नीड्स अनदर डोज ऑफ वैक्सीन, अनदर मे बी इंजेक्शन ऑफ द वैक्सीन, सो दैट इज कॉल्ड एज बूस्टर डोज, ठीक है। तो ये एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन द डिजीज, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, द पर्सन में डेवलप इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। तो जहाँ पे इंजेक्शन हमने एडमिनिस्टर किया, जहाँ पर इंजेक्शन को लगाया गया, दैट प्लेस, बिकॉज एट दैट रीजन स्पेशली the amount of pathogen which has been given to the individual is very high, तो वहाँ पे concentration pathogen का बहुत ज़्यादा हो जाता है जहाँ पे इंजेक्शन लगा, तो that is the reason वहाँ उस प्लेस पर पर्सन की इन्फ्लेमेशन अपीयर हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन? इट इज जो स्किन है that will become swollen and it will become red and sometimes sepsis also happens, okay। So these are nothing but a sign that huge amount of pathogen has been given to the person, okay। So that is why this kind of reaction might appear, which will go after some time, but this is because of huge amounts of pathogen or the vaccine which is given to the person. Now advantage, इसका एडवांटेज क्या है? It is easy for long term storage. Why? Because it is already killed, there is no we need not to be careful about the time in which we are storing it,
and the pathogen, whether it is actually alive or not, we need not to worry about that. So we can do the long-term storage. It is easy to be transported, and there is also no risk of causing severe active infections. Why? Because it is inactivated, it will generate weak immune response. So the actual disease symptoms will not appear in this particular case. So there is no risk of the disease at all. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स कौन कौन सी डिजीजेस में इस तरीके की वैक्सीन्स ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं और कौन से डिजीजेस हैं. सो एग्जाम्पल्स आर कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, influenza, plague and rabies. So these are the diseases for which we provide inactivated vaccines. ओके, सो ये आपको रिमेंबर रखने होंगे इनके नेम्स, कौन कौन सी डिजीजेस के लिए कौन सी पर्टिकुलरली वैक्सीन हम यूज करते हैं, दैट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ द वैक्सीन्स विच आर सब यूनिट वैक्सीन्स. ठीक है, जैसे कि नेम बता रहा है इसका क्लियरली, इसमें एक सब यूनिट यूज होगा पैथोजन का पूरा पैथोजन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. सो in these kinds of vaccines, key antigens of pathogen are used, not whole cells or whole viruses, only a part of them. Okay, how do we generate, how do we produce these vaccines? By chemically degrading a pathogen and isolating its key antigens. तो chemically हम कैसे degrade कर सकते हैं? केमिकली हम डिग्रेड कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, फॉर एग्जांपल सम एसिड हाइड्रोलिसिस और प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करके हम शॉर्ट पेप्टाइड्स बना सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, सेल लाइसिस कर सकते हैं पैथोजन का, एंड देन वी कैन सेलेक्ट सम key antigens out of it and then purify those, isolate those antigens and then make the vaccine. We can also produce these vaccines through जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो कि उस पर्टिकुलर पैथोजन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका जीन हम आइसोलेट करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर दें किसी बैक्टीरिया में, वहाँ पे एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस करके हम उस प्रोटीन को आइसोलेट करके फिर प्यूरिफाई करें. ठीक है, तो इस तरीके से हम प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ दैट प्रोटीन वी कैन यूज एज सब यूनिट वैक्सीन. तो genetic engineering is very very important for the production of vaccines. Okay. So because these vaccines contain only the essential antigens, the risk of side effects is relatively low. ठीक है, साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है क्योंकि हम इसमें पर्टिकुलर एंटीजन ही डाल रहे हैं, बाकी और चीज़ें नहीं आ रही हैं जो अलोंग विद द बैक्टीरिया या फिर अलोंग विद द एंटायर होल सेल कम इनटू द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, तो बाकी चीज़ें नहीं आ रही, ओनली हमारा जो भी इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल है वो ही आ रहा है कि एंटीजन. अब सब यूनिट वैक्सीन्स में इनमें भी मल्टीपल डोजेस रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि इसमें हम एक स्मॉल छोटा सा ही एंटीजन डाल रहे हैं, इसमें हम ज़्यादा कुछ पूरा होल सेल नहीं है. सो दैट इज़ वाई इट विल रिक्वायर मल्टीपल डोजेस, तो बार बार देना पड़ेगा ताकि हम सफिशेंट अमाउंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सके. समहाउ अगर उस एंटीजन में वेरिएशन हो गया है या फिर वो पर्टिकुलर पैथोजन, ठीक है, उसके प्रोटीन में कुछ वेरिएशन हो गया और फिर उसने इन्फेक्ट करा है, तो फिर हो सकता है कि ये जो सब यूनिट वैक्सीन से जो इम्यूनिटी आई थी दैट विल नॉट बी सफिशिएंट टू फाइट विद द पैथोजन विद द एंटीजन वेरिएशन. इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज किसी पैथोजन में वो पर्टिकुलर प्रोटीन ही म्यूटेट हो गया, वो पर्टिकुलर प्रोटीन में ही कुछ चेंजेस आ गए, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं, कंपोजिशन में चेंजेस, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, वो एंटीजन ही चेंज हो गया है. तो एंटीजन चेंज हो गया है तो जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था उसके अगेंस्ट वो अब वर्क नहीं कर पाए. ठीक है, सो देर इज अ चांस ऑफ नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीजेनिक वेरिएशन.
अब किन डिजीजेज में ये यूज हो चुका है ऑलरेडी? एंथ्रेक्स में, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, पैपिलोमा वायरस, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, वूपिंग कर्व। तो ये सब जो डिजीजेस हैं इनके अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं सब यूनिट वैक्सीन्स। ओके, एंड जैसे कि नेम सजेस्ट करता है और जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हो कि ये जो वैक्सीन है सिंस दे आर सब यूनिट वैक्सीन, दे डू नॉट कंटेन होल ऑर्गेनिज्म, तो इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप करेगा। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेगा, सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप इससे नहीं होगा, ओनली ह्यूमोरल होगा। सो दिस इज हाउ दे एक्ट इनसाइड द बॉडी। Now coming to the next class of vaccines which is toxoid vaccines. ठीक है, अब टॉक्सॉइड क्या होता है? टॉक्साइड इज नथिंग बट इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन। टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर दिया है तो क्या बन जाता है? टॉक्सॉइड। ठीक है, तो टॉक्साइड वैक्सीन्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट डिजीजेस इन विच बैक्टीरियल टॉक्सिन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी वजह से डिजीज हो रहा है। यहाँ पर बैक्टीरिया इटसेल्फ की वजह से डिजीज नहीं हो रहा है कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है, बैक्टीरिया में कुछ ऐसा कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जिसकी वजह से डिजीज हो रहा है, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया अपने अंदर प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक्ट करते हैं एज टॉक्सिन। They are either secreted outside or they are maybe formed within the cell of the pathogen. Okay, so these are inactivated and then administered through toxoid vaccines. Okay, and they activate only ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे एंड देन दे विल न्यूट्रलाइज the molecule, ठीक है, the pathogen which is causing the molecule of the pathogen, the toxin which is produced by the pathogen is neutralized by the antibody. ठीक है, so this is toxoid. तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, बी सेल्स प्रोड्यूस होती है और मेमोरी बी सेल्स जो है वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं टू द इंडिविजुअल। ओके, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, कौन कौन सी डिजीजेस है जिनको प्रिवेंट करने के लिए टॉक्साइड वैक्सीन दी जाती है? वो है बोटुलिज्म, डिप्थीरिया, परचूसिस एंड टिटेनस। So these are the diseases against which toxoid vaccines have already been prepared and being given to the individuals. Now coming to the another class of vaccine which is conjugate vaccines. ठीक है, अब कॉन्जुगेट वैक्सीन्स क्या होते हैं? हमने सारे सब तरीके के पढ़ लिए वैक्सीन। अभी कॉन्जुगेट में दो चीज़ों को मिक्स कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। कैसे जोड़ दिया जाएगा? तो कौन कौन सी चीज़ों को? प्रोटीन को कॉन्जुगेट कर दिया जाएगा कैप्सूल पॉलीसैकेराइड के साथ। ठीक है, तो ये कौन से पैथोजन के अगेंस्ट दिया जाता है? उन पैथोजेंस में जिनमें की प्रोटेक्टिव पॉलीसैकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जो प्रोटेक्ट करता है उस पैथोजन को फ्रॉम द फैगोसाइट्स। ठीक है, फैगोसाइट्स को वो इवेड कर जाते हैं और वो सक्सेसफुली उससे बाहर निकल जाते हैं और बच के निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स दोनों का एक कॉन्जुगेट बना दिया जाता है और दिया जाता है टू द इंडिविजुअल सो दैट द इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट बोथ द प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। दोनों के अगेंस्ट में बनाया जाता जो है इम्यूनिटी वो प्रोड्यूस होएगा। कॉन्जुगेट ठीक है, तो इट विल स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट बोथ द प्रोटीन। ठीक है, दोनों के लिए, प्रोटीन के लिए भी और पॉलीसैकेराइड दोनों के लिए ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे।
So they are also costly to produce. ठीक है, it is not easy to synthesize and make a conjugate of this protein and polysaccharide. तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केयरफुली कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स चाहिए होते हैं, जिनमें कि हम प्रोटीन को यूज़ कर रहे हैं और माइल्ड रिएजेंट्स यूज़ करके पॉलीसेकेराइड को कॉन्जुगेट करें। तो यहाँ पे माइल्ड कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेंगी हमें, और साथ ही साथ यील्ड भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस ये सब जो चीज़ें हैं दे ऑल रिक्वायर हाई कॉस्ट। ठीक है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से हमें ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज वैक्सीन्स विल कॉस्ट अ लॉट। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीजेनिक वेरिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया वो पर्टिकुलर प्रोटीन जिसके अगेंस्ट हम इम्यूनिटी डेवलप करा रहे हैं इंडिविजुअल में, अगर उसमें ही वेरिएशन आ गया, उसमें ही कुछ म्यूटेशन आ गया, स्ट्रेन में से कुछ चेंजेस आ गए, तो क्या होगा? तो जो इम्यूनिटी डेवलप हुई थी, जो मेमोरी बी सेल्स डेवलप हुए थे उसमें, दे विल नॉट बी इफेक्टिव अगेंस्ट दिस न्यू पैथोजन। तो देयर विल नॉट बी एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीजेनिक वेरिएशन। ठीक है, और जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, ये सिर्फ ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, not cellular immunity, because it is just a part of the pathogen, not the entire pathogen. किसके अगेंस्ट यूज होते हैं? जनरली दे आर यूज्ड अगेंस्ट meningitis, against these pathogens, because they have protective polysaccharide around them. Okay, so these vaccines have been proven to be effective against meningitis. Now coming to the last class of vaccine, which is DNA vaccine. DNA vaccine में अभी बहुत ज़्यादा कुछ फाइंडिंग्स नहीं हुआ है, ये एकदम न्यू कंसेप्ट है। ठीक है, तो एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है? डीएनए वैक्सीन में नाम से लग रहा है कि डीएनए है जो वैक्सीन के तौर पे दिया जा रहा है, बट इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है? इसमें जो प्रोटीन है, जो की एंटीजन है, उसका जो जीन है वो एक प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो एंटीजन का जीन, की एंटीजन का जीन जो है, दैट इज ट्रांसफर टू अ प्लाज्मिड। ठीक है, तो एक प्लाज्मिड में उसका एंटर करा दिया, एंड देन दैट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इनटू द एनिमल सेल, एनिमल और ह्यूमन सेल। ठीक है, तो ह्यूमन सेल के अंदर जाने के बाद दिस प्लाज्मिड विल स्टार्ट, मे बी दिस प्लाज्मिड विल स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ, ये न्यूक्लियस हो गया ह्यूमन सेल में और ये प्लाज्मिड हो गया। तो पहली बात तो ये कि प्लाज्मिड को किसी ह्यूमन सेल के अंदर पहुंचाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो वो प्लाज्मिड स्टेबल नहीं रहेगा, वो डिग्रेड हो जाएगा। सो इट इज़ स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन, स्टिल न्यू फाइंडिंग्स आर कमिंग आउट रिगार्डिंग डीएनए वैक्सीन, कैसे उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम डीएनए को सक्सेसफुली इंसर्ट करा सकते हैं इन द सेल ऑफ ह्यूमंस। तो डीएनए को हमने इंसर्ट करा दिया, अगर सपोज इट हैज़ स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, एंटीजेनिक प्रोटीन, तो ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है ह्यूमन सेल के अंदर, और जब एक्सप्रेस हो जाएगा तो ह्यूमन सेल में प्रेजेंट जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स है, दे विल प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट करेंगे इसके एंटीजन को, तो एंटीजन का एक पार्ट है ना, डिग्रेड कर दिया प्रोटीन को, और फिर इसका एक पार्ट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा किसके थ्रू? एमएचसी मॉलिक्यूल के थ्रू। और ये एमएचसी मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय अ टी सेल। ठीक है, टी सेल के रिसेप्टर से, तो टी सेल के रिसेप्टर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एंड देन इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम डीएनए वैक्सीन को यूज़ कर सकें। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड डीएनए वैक्सीन। तो पहले क्या है, एक प्लाज्मिड में उसकी जीन को ट्रांसफर करा दो और उस एंटायर प्लाज्मिड को ट्रांसफर करा दो किसी ह्यूमन सेल में, इनसाइड द बॉडी ऑफ द पर्सन, ऑब्वियसली किसी पर्सन की बॉडी में, और वहाँ पर दैट पर्टिकुलर सेल जिसमें कि वो एडमिनिस्टर करा दिया गया, उसमें इंसर्ट करा दिया गया है, उसमें वो प्रोटीन प्रोड्यूस होएगा, और दैट प्रोटीन will be degraded and presented on the
सरफेस ऑफ MHC मॉलिक्यूल्स। और आपको ध्यान रहे हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं हर एक सेल में बहुत सारे MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं। हर एक सेल में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सभी डिग्रेड होके प्रेजेंट होते हैं ऑन ईच एंड एवरी सेल विद इन द बॉडी। ठीक है, तो जितने भी प्रोटीन्स है वेदर दे आर सेल्फ और नॉन सेल्फ, दोनों तरीके के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा उनके अगेंस्ट जनरेट होता है जो कि नॉन सेल्फ प्रोटीन्स होते हैं, because during the development, during the embryonic development, the immune system is taught मतलब उस इम्यून सिस्टम को सिखाया जाता है कि ये है सेल्फ और ये इसके अलावा जो भी होगा वो होगा नॉन सेल्फ। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाता है, दैट इज लर्नड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अर्ली एजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। Okay, so these molecules will be considered as non-self molecules and the immune system will be generated। T cell बनेगा, T cell में दोनों तरीके के सेल बनेंगे, activated T cell and memory T cell। तो memory T cells will generate the long-term memory of the particular disease। So a lot of work is going on DNA vaccine, कैसे हम उसको successfully use कर सकते हैं in the form of vaccine। So this is all about for today's class, and those who want to join my live classes, so I have started taking the new batches for the IIT JAM exam। IIT JAM 2021 के लिए मैं classes start कर रही हूँ from this month of October। और आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो अगर आप IIT JAM 2021 की तैयारी कर रहे हो या फिर और भी MSc एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगी, आपको प्रॉपर टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, कैसे प्लानिंग करनी है आपका पूरे साल जितना भी आपके पास मंथ्स बच रहे हैं, तो आपको किस तरीके से प्लान करना है अपनी स्टडीज़ को, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू। एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम अ टॉपर ऑफ ऑल दीज एग्जाम्स, सो यू विल श्योरली crack these exams with very good ranks। So don't waste your time, today only subscribe to Unacademy Plus using my referral code। मेरा referral code use करोगे तभी मैं आपकी help कर पाऊँगी। So use my referral code and you will get 10% discount। And if you have any queries, आपको कोई भी query है आप मुझे comment box में mention कर सकते हैं, या फिर Unacademy की वेबसाइट पे मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। कोई भी क्वेरी है एग्जाम रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड, यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट दैट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय क्लास एंड टेक केयर।